ہنا ہے اور آج میں اور مسٹر نیلسن آپ کے لیے ایک بہت مزے کی کہانی لائے ہیں. ہے نا نیلسن؟ کہہ رہے ہیں ہاں. کیا آپ کبھی سرکس گئے ہیں؟ میں تو نہیں گئی، لیکن آج ہم دونوں کٹھے مل کے ٹامی، انیکا اور پیپی کے ساتھ سرکس چلیں گے. تو یہ رہی کہانی پیپی سرکس کو چلی. مقامی قصبے میں سرکس لگا ہوا تھا. سب بچے والدین سے ضد کر رہے تھے کہ انہیں سرکس دیکھنے کی اجازت دی جائے. ٹامی اور انیکا نے اپنے والدین سے جانے کی اجازت مانگی تھی اور ان کے ابو نے انہیں اجازت کے ساتھ ساتھ سرکس کی ٹکٹ کے لیے پیسے بھی دیے تھے. دونوں بچے پیسے ملتے ہی تیزی سے پیپی کے گھر کی طرف بھاگے. پیپی اس وقت اپنے برآمدے میں تھی اور کھڑی اپنے گھوڑے کی دم میں چھوٹی چھوٹی سی چٹیاں باندھ رہی تھی جن میں سرخ ربن لٹکے ہوئے تھے. میرا خیال ہے آج اس کی سالگرہ ہے، وہ بولی. اپنی سالگرہ پہ تو اسے اچھی طرح تیار ہونا چاہیے نا. پیپی، ٹامی نے پھولی ہوئی سانسوں سے دور سے آواز دی، سرکس چلو گی؟ سرکس کون ہے؟ میں تو ایسے کسی سر کو نہیں جانتی. کیا کوئی نئے استاد آئے ہیں؟ پیپی نے حیرت سے پوچھا. پاگل مت بنو، ٹامی ہنس پڑا. یہ کسی انسان کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک جگہ کا نام ہے جہاں سب مزے کرتے ہیں. وہاں گھوڑے ہوتے ہیں، جوکر ہوتے ہیں اور عورتیں ہوتی ہیں جو رسی پہ چلتی ہیں. لیکن اس کے پیسے لگتے ہیں. انیکا نے اپنی مٹھی کھول کر پیسے دکھائے. اس کے بعد پیپی گھر میں گئی اور اپنے سکوں والے تھیلے میں سے سونے کے چند سکے لے کر واپس آ گئی. پھر اس نے اپنا بڑا سا ہیٹ اپنے سر پہ جمایا اور اگلے ہی لمحے وہ تینوں سرکس کی طرف چل پڑے. سرکس دیکھنے کے لیے ٹکٹ آفس کے سامنے لمبی قطار لگی تھی. وہ بھی اس میں جا کے کھڑے ہو گئے. جب پیپی کی باری آئی تو اس نے اپنا سر ٹکٹ والی چھوٹی سی کھڑکی میں ڈال دیا اور اندر بیٹھی بوڑھی خاتون سے بولی، اچھا تو یہ بتائیں آپ کو دیکھنے کے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ اس نے غور سے خاتون کو دیکھا. وہ خاتون مقامی نہیں تھی، اس لیے پیپی کی بات انہیں سمجھ نہیں آئی. انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، چھوٹی بچی، سب سے بہترین سیٹ کا 5 کرونا ہے، اس سے تھوڑی کم اچھی سیٹ کے 3 کرونا ہے اور کھڑے ہو کر دیکھنے کی 1 کرونا ہے. ٹھیک ہے. پیپی نے رضامندی سے سر ہلایا. پیپی نے اپنا سونے کا سکہ نکال کر خاتون کو دے دیا تو وہ کچھ دیر کے لیے شک میں پڑ گئی. پھر اس نے سکے کو دانتوں سے کتر کے دیکھا کہ یہ واقعی سونے کا سکہ ہے یا نہیں. جب وہ مطمئن ہو گئی تو اس نے پیپی کو بھی ٹکٹ دے دیا. ساتھ ہی اس نے پیپی کو ڈھیر سارے چاندی کے سکے بھی بقیہ رقم کے طور پر واپس کر دیے. میں کیا کروں گی ان عجیب سے سفید ٹکڑیوں کا؟ پیپی نے وہ ڈھیر خاتون کو واپس کر دیے. یہ آپ ہی رکھ لیں، اس طرح میں آپ کو 2 بار کھڑے ہو کے دیکھ لوں گی. پیپی کی ضد کو دیکھتے ہوئے خاتون نے ان تینوں کو سب سے بہترین سامنے والی سیٹوں کے ٹکٹ دے دیے. وہ تینوں سرکس کے میدان کے بالکل قریب رکھی ہوئی سرخ رنگ کے چمڑے سے بنی شاندار سیٹوں پر بیٹھے تھے. ٹامی اور انیکا کے اسکول کے کئی دوست پیچھے والی سیٹوں پر بیٹھے تھے. ٹامی اور انیکا نے کئی بار پیچھے مڑ مڑ کے انہیں ہاتھ ہلایا اور اشارے کیے. کیسا عجیب سا خیمہ لگایا ہے ان لوگوں نے، پیپی نے گردن گھما گھما کر ہر طرف دیکھتے ہوئے کہا. اور فرش پہ بھی لکڑی کا بھراگا پھیلا ہوا ہے. ویسے تو میں صفائی کا خیال نہیں رکھتی، لیکن یہ گندا لگ رہا ہے. ٹامی اور انیکا نے پیپی کو بتایا کہ ہر سرکس میں ایسا ہی ہوتا ہے تاکہ گھوڑے پھسل کر گر نہ جائیں. اچانک سامنے موجود بالکنی میں بیٹھے سازندوں نے اونچی آواز میں ایک پرجوش دھن بجانی شروع کر دی. ہر طرف لوگوں کی آوازوں، تالیوں اور سیٹیوں کا شور مچ گیا. پیپی بھی خوشی میں اپنی کرسی سے اچھل اچھل کر تالیاں بجانے لگی. کیا یہاں سننے کے بھی پیسے لگتے ہیں یا یہ مفت ہوتا ہے؟ پیپی نے شور مچاتے ہوئے پوچھا. اسی لمحے سامنے لگا پردہ کھلا اور اس میں سے ایک سرکس کا سب سے ماہر مداری باہر آ گیا. اس نے کالا لمبا کوٹ پہنا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک چابک تھا. اس کے پیچھے 10 سفید گھوڑے دوڑتے چلے آئے جن کے سر پہ سرخ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں. مداری نے اپنا چابک ہوا میں لہرایا. ایک کڑاکے کی آواز آئی اور سارے گھوڑے میدان میں گھومنے لگے. مداری نے پھر اپنا کوڑا لہرایا تو سارے گھوڑے میدان کے ساتھ لگی جالی پر پاؤں ٹکا کر کھڑے ہو گئے. ان میں سے ایک گھوڑا تینوں بچوں کے بالکل سامنے آ رکا تھا. پیپی کو ہرگز ڈر نہیں لگا. اس نے آگے بڑھ کے گھوڑے کی ٹانگ پکڑ لی اور بولی، ہیلو ہیلو، کیا حال ہے تمہارے؟ میرے پاس بھی ایک گھوڑا ہے اور آج اس کی سالگرہ ہے.
लेकिन उसकी दुम में रिबन बंधे हैं, तुम्हारी तरह सर में नहीं। ये कहकर पिपी ने घोड़े का पांव छोड़ दिया। उसी वक्त मदारी ने अपना कोड़ा फिर हवा में घुमाया और हवा में उसकी पटाखेदार आवाज आते ही सारे घोड़े जाली से हट गए और फिर से मैदान के चक्कर लगाने लगे। थोड़ी देर बाद मदारी ने झुककर सबका शुक्रिया अदा किया और वापस पर्दे के पीछे चला गया। उसके पीछे पीछे सारे घोड़े भी चले गए। इस दौरान अगला करतब शुरू हो गया। बहुत ऊपर तनी हुई रस्सी पर एक लड़की नजर आ रही थी जिसका नाम अनाउंसर ने मिस एल्वायरा बताया। वो बहुत नजाकत और रक्स के अंदाज में रस्से पर चल रही थी। उसने गुलाबी रंग की जालीदार फ्रॉक पहनी हुई थी और उसके हाथ में गुलाबी रंग की ही छड़ी थी। कभी वो अपना एक पांव हवा में बुलंद कर देती थी और खुद को संभाल कर करतब दिखाती थी। कभी वो सीधी चलती थी और कभी उल्टी। उसके करतबों पर तमाशाइयों की सांसें रुक जाती थी, लेकिन वो रस्से पर नाचती रही। वो इसी तरह चलते चलते रस्सी की एक किनारे पर पहुंची जहां खड़े होने के लिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना हुआ था। तो उसकी सांसें रुक सी गईं क्योंकि वहां पिपी खड़ी नजर आ रही थी। हेलो हेलो, पिपी ने उसको मुस्कुराकर कहा, मैं यहाँ हूँ। एल्वायरा की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसे एक झटका लगा और अगले ही लम्हे उसने रस्सी पर से नीचे छलांग लगा दी। जमीन पर आते ही वो दौड़ती हुई मदारी की तरफ चली गई जो असल में उसका बाप था। मदारी गुस्से से पागल हो गया। उसने फौरन इशारा किया कि पिपी को पकड़ के नीचे ला दिया जाए। इस बार मदारी ने 5 गार्ड्स भेजे, लेकिन जैसे ही वो गार्ड्स आगे बढ़े पंडाल में बैठे हुए तमाशाइयों ने शोर मचा दिया। वो पिपी का करतब देखना चाहते थे। पिपी ने मुस्कुरा कर सबको हाथ हिलाया और मजे से रस्सी पर चलना शुरू कर दिया। वो कभी आगे जाती और कभी पीछे। उसके करतब लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे जो मिस एल्वायरा से बहुत अच्छे थे। पिपी ने अचानक अपनी एक टांग उठाकर हवा में इतनी बुलंद कर ली कि उसका बड़ा सा जूता किसी छतरी की तरह सर पे साया करने लगा। फिर उसने अपने जूते की नोक से एक कान खुजाया तो मजमा हैरत से दंग रह गया। लोगों ने जबरदस्त तालियां बजाकर पिपी को खूब दाद दी। इधर मदारी ने पिपी को रस्से पर से उतारने के लिए नई तरकीब सोची। वो खामोशी से ऊपर चढ़ा और रस्सी को एक तरफ से खोल दिया। उसका ख्याल था कि रस्सी खुलते ही पिपी नीचे गिर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रस्सी हवा में झूली तो पिपी ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और फिर यहाँ से वहां हवा में झूलने लगी। लोगों ने तालियां बजा बजा कर आसमान सर पे उठा लिया। उसका करतब उन्हें बहुत पसंद आ रहा था। पिपी कुछ देर हवा में झूलती रही और फिर यकायक उसने रस्सी छोड़ दी। वो हवा में घूमती हुई आई और सीधी आकर मदारी के कंधों पर बैठ गई। उसका ये करतब हैरान कर देने वाला था। मदारी को समझ नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है। इससे पहले कि वो कुछ करता, पिपी बोल उठी, ये तो बहुत बुढ़ा घोड़ा है। उसने मदारी के सर पर हाथ फेरा और इसके सर में कपड़ा भी नहीं बंधा हुआ। लोग मदारी की हालत पे हंसने लगे। पिपी ने सोचा कि अब टॉमी और अनीका की तरफ जाया जाए, तो उसने वहीं से लंबी छलांग मारी और वापस अपनी सीट पर आके बैठ गई। मदारी ने अपनी फूली हुई सांसें दुरुस्त की और भागकर पानी की एक गिलास गटागट पी गया। इस दौरान अगला करतब शुरू हो गया। मदारी वापस आया और लोगों से बोला, तो ख़वातीन और हजरात, जिसे आज तक कोई नहीं हरा सका, हमारा हीरो एडोल्फ पहलवान। ऐलान खत्म होते ही मैदान में एक लंबा चौड़ा इंसान दाखिल हुआ। उसने चुस्त कपड़े पहने हुए थे और कमर के गिर्द चीते की खाल जैसा कपड़ा लपेटा हुआ था। वो आकड़ कर चलता हुआ मैदान में आया और अपने मजबूत जिस्म की नुमाइश करने लगा। देखें हमारे जबरदस्त पहलवान को। मदारी ने एडोल्फ पहलवान के मोटे मोटे बाजुओं को छुआ। और अब ख़वातीनो हजरात, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, है कोई माई का लाल जो हमारे पहलवान को हरा सके? अगर है तो सामने आए। किसी में है इतनी हिम्मत तो आगे बढ़े और एडोल्फ पहलवान को हरा दे। इनाम में उसे हम 100 करोना देंगे। जी हाँ, पूरे 100 करोना।
घूम घूम कर हर तरफ एक को मुकाबले की दावत दे रहा था। मजमे पर सन्नाटा छा गया था। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन कोई भी मैदान में नहीं उतरा। क्या कह रहे हैं ये आदमी? पीपी ने पूछा। ये कह रहे हैं कि अगर कोई इस पहलवान को हरा दे तो उसे इनाम में 100 करोड़ मिलेंगे, टॉमी ने सरगोशी में बताया। मैं इसे हरा सकती हूँ, पीपी ने कहा, लेकिन ये तो इतना मासूम लग रहा है, इसको हराना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वाकई पीपी? अनीका ने बेयकीनी से कहा। ये दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है, क्या तुम इसे हरा सकती हो? हाँ भाई, पीपी आराम से बोली, अगर ये दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है तो मैं भी दुनिया की सबसे ताकतवर लड़की हूँ। जब वो ये बातें कर रहे थे, उस वक्त एडोल्फ पहलवान मैदान में पड़ी हुई लोहे की भारी भारी गेंदें उठा उठा कर फेंक रहा था। उसने लोहे की मोटी मोटी सलाखें हाथों से मोड़ दी थीं। जी हाँ, तो कोई है इस पंडाल में ऐसा बहादुर? मदारी ने फिर एक बार आवाज लगाई। कोई सूरमा है यहाँ जो 100 करोड़ का इनाम जीते? करो हिम्मत और आके ले जाओ 100 करोड़ का इनाम, आ जाओ। ठीक है। अचानक पंडाल में पीपी की आवाज गूंजी। मैं आती हूँ। उसने फिर छलांग मारी और जाली पर से कूदती हुई मैदान में जा खड़ी हुई। मदारी गुस्से से चिल्लाया, भाग यहाँ से। क्या हो गया अंकल? पीपी ने मदारी को डांटा। आप इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? मैं तो बस पहलवान से लड़ने आई हूँ, आपने खुद ही तो बुलाया है। अरे भाग यहाँ से, मदारी बोला। ये नन्ही बच्चियों का काम नहीं है, हमारा पहलवान तो 1 मिनट में तेरा कीमा बना देगा। मगर पीपी ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी और सीधी जाकर एडोल्फ पहलवान के सामने जमकर खड़ी हो गई। चलो भाई, मुकाबला शुरू करो, वो बोली। पहलवान हक्का बक्का उसे देखता ही रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। चलो भाई, पीपी ने उसे इशारा किया, शुरू हो जाओ। पहलवान ने मदारी की तरफ देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कहीं और देखता, पीपी ने छलांग लगाई और मजबूती से एडोल्फ पहलवान को पकड़ लिया। पहलवान ने जवाबी वार का सोचा ही था कि पीपी ने उसे उठा लिया और हवा में घुमाकर फर्श पे पटक दिया। पंडाल में सन्नाटा छा गया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। लंबा चौड़ा एडोल्फ पहलवान जमीन पर चित पड़ा हुआ था। जबरदस्त पीपी! टॉमी और अनीका एक साथ चीखे। लोगों को पता चल गया कि मैदान में खड़ी हुई लड़की का नाम पीपी है। यकायक सारा मजमा उसके नाम के नारे लगाने लगा। मदारी ने ये देखकर अपना सर पीट लिया। उधर पहलवान गुस्से में पागल हो गया, फौरन ही उठा और पीपी पे झपटा। उसने पीपी को कमर से पकड़ के उठाना चाहा, मगर पीपी किसी पहाड़ की तरह अपनी जगह खड़ी रही। वो टस से मस न हुई। बस, उसने पहलवान को चिढ़ाया, क्या इतना ही आता है आपको? पहलवान ने सारी ताकत लगा दी, मगर कुछ ना हुआ। पीपी ने खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाया और फिर अगले ही लम्हे सबने देखा कि पहलवान एक बार फिर जमीन पे गिरा हुआ था। पहलवान फौरन ही उठा और हमला आवर हुआ। छी छी छी, पीपी ने मुंह बनाया, एक बच्ची से हार रहे हैं आप? लोगों ने आसमान सर पे उठा लिया। हर तरफ पीपी के नाम का शोर मच गया। पीपी ने एडोल्फ पहलवान को फिर एक बार सर पे उठा लिया और उसी अंदाज में मैदान का एक चक्कर लगाया। हर तरफ तालियों और सीटियों का तूफान आ गया था। पीपी फातिहाना अंदाज में मैदान के बीच में पहुंची और धीरे से पहलवान को नीचे लिटाकर उस पे चढ़ बैठी। बस, अब काफी, अब मुझे ज्यादा मजा नहीं आ रहा इस खेल में, उसने मचलते हुए पहलवान को काबू करते हुए कहा। लोग खुशी से उछलने लगे। पीपी जीत गई, पीपी जीत गई। हर एक के होंठों पर पीपी का नाम था। एडोल्फ पहलवान घबरा कर उठा और एक तरफ भाग निकला। मदारी ने अपने माथे पर आए हुए पसीने को साफ किया। उसका बस चलता तो वो पीपी को कच्चा चबा जाता, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। ये लो बच्ची, मदारी ने जेब से निकालकर 100 करोड़ पीपी के हाथ में रख दिया। मुझे क्या करना है इस कागज के टुकड़े का? पीपी ने 100 करोड़ नोट को हैरत से देखा। आप अपने पास रख ही लें और इससे अपने घोड़ों के लिए नए रिबन ले लें। वो अपनी सीट पर वापस आ गई। ये तो बहुत लंबा सर्कस है भाई, पीपी बोली। मैं तो थक गई हूँ और सोने लगी हूँ। जब इन लोगों को मेरी मदद की जरूरत हो, मुझे उठा देना।
اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ جب وہ اونچے اونچے خراٹے مار کر سو رہی تھی تب میدان میں جوکر قلع بازیاں کھا رہے تھے اور سپیرے بڑے بڑے سانپ لے کر لوگوں کو حیران کر رہے تھے اور تلوار باز اپنی مہارت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ پھر جب سرکس ختم ہونے لگا تب ٹامی نے انیکا کے کان میں کہا، میرا خیال ہے سب سے اچھے کرتب پپی نے ہی دکھائے تھے۔